Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you'd be fine. I'm here with a new chapter, new story, and this is the second part of the Wolf Children, which I have shared with you the first part, the Wolf Children 1, and chapter number 9 in the previous video. And now it's time to move towards the part 2 of the Wolf Children. First, we are going to discuss all the word meanings given over here, and then we are going to discuss few more word meanings that we are going to go through the story. Bound means walk in a leaping manner. लेटते हुए चलना, क्रॉलिंग करते हुए. जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग स्पाइंग कर रहे होते हैं, जासूसी कर रहे होते हैं, या जो लोग फौज में काम करते हैं, अगर उनको कहीं छुप के चलना पड़ता है तो वो लेटते हुए रेंगते हुए चलते हैं. तो दैट इज कॉल्ड बाउंड. Crouch, to squat down on the balls of the feet with knees bent and body hunched over. It's actually a position in which four-legged animals usually sit. तो वो क्या करते हैं कि अपने पाँव को मोड़ के उसके ऊपर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपनी बॉडी को अप साइड कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्राउच. ईरी, फ्राइटिंगली स्ट्रेंज, वियर्ड, समथिंग वेरी मच वियर्ड, अजीब सी, मतलब जिससे घबराहट सी महसूस हो, ऐसी कोई चीज. मोर्न, टू बी सैड स्पेशली बिकॉज समवन हैज डाइड. सोग करना, किसी के मर जाने पर अफसोस करना, दैट इज कॉल्ड मोर्निंग. Orphanage is a home for children who has no parents, with no parents. The children who have lost their parents are usually living in an orphanage. Now I have few more word meanings. Let's discuss them also. Lapped means to drink and eat up. Lapped कहते हैं पानी या कोई भी ड्रिंक पीना, जैसे एनिमल्स पीते हैं मुंह लगाकर. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से पानी पीते हैं? हाथ की मदद से, और वो मुंह के अंदर डालते हैं, जबकि एनिमल्स जो पीते हैं वो अपनी जबान से डायरेक्टली जो है वो पानी को चाटते हुए पीते हैं. दैट इज कॉल्ड लैप. स्नैप मीन्स टू बाइट, काट लेना. मिरेकल, वंडर, सुपर नेचुरल, मौजा हो जाना, कोई चीज अनहोनी हो जाना, ऐसी चीज जो हमारे लिए हमें मुमकिन नजर ना आए, उसको हम कहते हैं मिरेकल. एकोड मीन्स रिपीटेड, रिफ्लेक्टेड, आवाज जो रिफ्लेक्ट बैक करती है, दैट इज कॉल्ड एको. Hurl means to throw, flip, फेंक देना. Escape means to get away, run off, भाग जाना. Raw means uncooked, कच्चा. Snarl, to show its teeth, दांत दिखाना अपने. ठीक है, गुर्राना. Rush over, hurry, quicken, जल्दी से. Setback, upset, अफसुर्दा हो जाना. Sniff, inhale, smell, किसी चीज को सूंघना. Faltering, drag one's feet, अपने पाँव घसीटना. Swaying, मूव फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर बेचैनी से चक्कर लगाना. Okay, let's begin the reading part of the story. On November 4th, Mr. Singh took the two girls to the orphanage in the city. This is the extension of chapter number 9. That this story starts right after the ending of chapter number 9. ठीक है, Mr. Singh उन दो बच्चियों को रेस्क्यू करके ले आए थे, और अब यहां से वो हमें बता रहे हैं कि रेस्क्यू करके लाने के बाद वो अपने घर ले जाने के बजाय उनको कहां लेकर गए? एक ऑर्फनेज के अंदर लेके गए, एक यतीम खाने में लेकर गए. हिज वाइफ हु हेल्प्ड रन द ऑर्फनेज कुड हार्डली बिलीव हर आईज एज शी वॉच्ड द वुल्फ चिल्ड्रन. तो उस ऑर्फनेज को बेसिकली रन कौन करता था, कौन चलाता था? उन्हीं की वाइफ चलाती थी, और उन दोनों बच्चियों को देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी. दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स टू राइट हियर. पार्ट ए सेज, वाज मिसेस सिंह सरप्राइज्ड बाय द चिल्ड्रन? क्या मिसेस सिंह सरप्राइज हुई थी बच्चों को देख के? हाउ डू वी नो? सो वी कैन से दैट yes, she was surprised to see the two children because she could hardly believe her eyes as she watched the wolf children. This sentence is telling us that she was surprised to see the two children. So we are going to write the answer of part A as yes, she was surprised by the children. She could hardly believe her eyes. This was the sentence, this was the phrase that is telling us that she was surprised. We come to know by this phrase, hardly believe her eyes. Okay, both had thick, rough skin on their hands, knees and elbows because they moved on all fours. When they wanted to go a short way, they used their knees and elbows, but when they wanted to run, they would travel using their hands and feet.
तो उनका चलने फिरने का जो तरीका था वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसे कि एनिमल्स का होता है। तो वो अपने हाथ और अपने घुटनों और अपने कोहनियों पर ही चलती थी, ठीक है। और जब किसी छोटे मतलब अगर कोई बहुत ही करीबी जगह पर जाना होता था, यानी ज्यादा नहीं चलना होता था, तो घुटनों और कोहनियों के बल चलती थी। और अगर भागना होता था तो अपने हाथों और अपने पांव यानी पंजों के ऊपर भागती थी, जैसे कि एनिमल्स भागते हैं। सो बेसिकली दिस इज द आंसर टू पार्ट नंबर बी। पार्ट बी सेज हाउ डिड द टू चिल्ड्रन मूव अबाउट? दोनों बच्चे कैसे चलते फिरते थे? We are going to write the answer as the two children moved about on all fours, sometimes on their knees and elbows, but if they wanted to run, they used their feet and hands. ठीक है, अगर उनको चलना फिरना होता था तो अपने चारों हाथ पांव पे चलती थी, ठीक है, घुटनों और कोहनियों के बल। और अगर भागना होता था तो अपने पंजों और अपने हथेलियों के बल भागती थी। Mrs. Singh gave them each a dish of milk which they lapped up. उनको एक प्याले में उन्होंने दूध पीने के लिए दिया मिसेस सिंह ने, तो उन दोनों ने जबान से उसको चाट लिया। When she tried to touch them, they growled and snapped at her hand. और अगर प्यार से उनको जब छूने की कोशिश की तो पहले तो वो गुर्राई, जैसे कि एनिमल्स गुर्राते हैं अगर उनकी तरफ कोई बढ़े, और उसके बाद फिर उनके हाथ पर काट पी लिया। Here we have part C. Why did the children drink milk by lapping it up with their tongues? Now we have to give reason in this question that why did the children drink milk by lapping it. We do not have the answer exactly in the passage, but we have to find out the answer and write it in our own words. कि हमें यहाँ पर रीजनिंग प्रोवाइड करनी है कि बच्चे जो थे उन्होंने लैप क्यों किया, मिल्क को चाटा क्यों, उन्होंने पिया क्यों नहीं, अपनी जबान से उन्होंने जो है वो घूंट घूंट करके कैसे पी लिया। So the answer would be the children drank milk by lapping it up with their tongues because this was what they have learned from the wolves. यही उन्होंने गीदड़ों से, वुल्फ से सीखा था, और वो रही उनके साथ थी हमेशा से, तो वो ह्यूमन बींग्स के तौर तरीके नहीं जानती थी, वो वही कुछ जानती थी जैसा कि एनिमल्स बिहेव करते हैं। और जैसे एनिमल्स खाते पीते थे बिल्कुल उसी तरह उनको कॉपी करते हुए वो भी खाती पीती बिल्कुल उसी तरह से थी। Let's move on. The girls were given the names Kamala and Amala. Kamala means lotus flower and Amala means bright yellow flower. इन दोनों बच्चियों के ये नाम रख दिए गए। It was clear that Kamala was several years older than Amala, and Mrs. Singh guessed that Kamala must be about 8 years old. कमाला जो थी वो अमाला से काफी बड़ी लग रही थी, दोनों की एजेस में काफी डिफरेंस था, और कमाला तकरीबन 8 साल की बच्ची थी। उन्होंने उसके फिजिक्स से अंदाजा लगाया कि ये 8 साल की बच्ची है, और अमाला उससे काफी छोटी थी। द सिंग्स हैड नो वे ऑफ टेलिंग वेदर द टू गर्ल्स वर सिस्टर्स और नॉट। ये भी नहीं पता था कि ये दोनों आपस में बहनें भी हैं या नहीं। एंड दे हैड नो आइडिया हाउ दे हैड कम टू लिव विद द वुल्व्स। इट सीम्ड अ मिरेकल दैट दे हैड सर्वाइव्ड इन जंगल फॉर सो लॉन्ग। तो ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि ये बच्चियां बहनें हैं या नहीं, और ये बच्चियां कैसे आई हैं, कैसे इनके पास वुल्फ्स के पास पहुंच गई, कैसे उनके साथ रहने लगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई स्टोरी का इनको क्लू नहीं मिल रहा था। बस सिर्फ एक ये मौजज़ा था कि ये इतने सालों में कैसे सर्वाइव कर गई, कैसे जिंदा रह गई एनिमल्स के साथ, वाइल्ड एनिमल वुल्फ्स के साथ। Mrs. Singh decided that the discovery of the children should be kept a secret. His wife agreed that this was best for the girls. Mr. Singh ने ये डिसाइड किया कि इन बच्चियों को जो इन्होंने एस्केप करा के और रेस्क्यू किया था, इस बात को एक सीक्रेट ही रखा जाए कि वो एक ऑर्फनेज में रह रही हैं, और उनकी वाइफ ने इस बात से अग्री किया कि ये बिल्कुल सही बात है। इट वॉज अ सीक्रेट दैट द सिंग्स वर नॉट एबल टू कीप फॉर लॉन्ग। लेकिन इस बात को वो ज्यादा दिन तक राज नहीं रख पाए। व्हेन मिसेस सिंह ट्राइड टू गिव द गर्ल्स देयर फर्स्ट बाथ, द ऑर्फनेज अकॉर्ड विद देयर हाउल्स। जब पहली दफा इन बच्चियों को नहलाया गया तभी ऑर्फनेज पूरा उनकी चीखों में नहा गया, यानी उनकी चीखें इतनी ज्यादा तवील थी, इतनी ज्यादा ऊंची आवाजों में वो चीख रही थी कि वो पूरा ऑर्फनेज लरज रहा था। सून टॉक ऑफ द वुल्फ चिल्ड्रन स्प्रेड थ्रू द सिटी। बस फिर क्या था कि हर जगह उन्हीं बच्चियों का चर्चा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज डिड द चिल्ड्रन बिहेव लाइक एनिमल्स। यहां पर हमें कुछ तरीके बताने हैं जिससे पता चल रहा है कि बच्चियां जो थी वो एनिमल्स की तरह बिहेव करती थी, उनका बिहेवियर ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं था। तो आंसर में वी कैन राइट द चिल्ड्रन बिहेव्ड लाइक एनिमल्स इन मेनी वेज। आई एम राइटिंग हियर 5 ways. You can write more or less. They walk on all fours.
चारों हाथ पांव पे चलती थी, इंसानों की तरह दो पांव पे नहीं चलती थी। दे लैप्ड मिल्क फ्रॉम द डिशेस इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग, पीने के बजाय वो चाट जाती थी जबान से। दे हाउल्ड एंड डिड नॉट लाइक बाथिंग, उनको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था और चीखती चिल्लाती थी, धाड़ती थी, गुर्राती थी। दे क्राउच्ड इन द शेड, और जब साया होता था तो उसके अंदर उस शेड में जाके वो अपने घुटनों और अपने पंजों के बल पे बैठ के और जो है वो मजा लेती थी शेड का। दे एट लाइक वाइल्ड एनिमल्स, और खाती भी किस तरह थी, वाइल्ड एनिमल्स की तरह खाती थी। The next question part E says, what did the Singhs decide to do and why? Singhs ने क्या डिसाइड किया था कि क्या किया जाएगा इन बच्चियों के साथ? The Singhs decided to keep discovery of the wolf girls a secret. उन्होंने यही डिसाइड किया था कि इस बात को एक राज रखा जाएगा, बिकॉज दे डिड नॉट वांट पीपल कमिंग टू सी देम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और ये किस वजह से था, ये यहाँ पर हम अपना रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक में ये रीजन मौजूद नहीं है। इसका रीजन यही था कि वो ये चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हुजूम में उनको देखने के लिए ना आ जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां पर कोई अनहोनी चीज होती है, कोई नई चीज होती है, तो लोग फौरन भागे दौड़े चले आते हैं उसको देखने के लिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो वो लोग ये चाहते थे कि क्योंकि ये बच्चियां अभी लोगों से फेमिलियर नहीं है और लोगों के साथ इतना अच्छा इनका बिहेवियर नहीं है, तो इस बात को राज रखा जाए। ओके, द फर्स्ट लेसन दैट अमाला एंड कमाला हैड टू लर्न वाज दैट दे वर नॉट वुल्व्स। पहला लेसन इनको यही पढ़ाना था, सबक यही देना था कि दोनों बच्चियां इंसान हैं, वुल्व्स में से नहीं हैं। दिस वॉज फार मोर डिफिकल्ट देन मिसेस सिंह हैड इमेजिन्ड। लेकिन ये लेसन उनके लिए इतना ज्यादा मुश्किल था जो मिसेस सिंह की सोच से भी कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। Although she deliberately played with other children in front of Amala and Kamala, she could not get the wolf girls to behave like humans. तो हालांकि वो जानबूझकर डेलिबरेटली इंटेंशनली दूसरे बच्चों के साथ उनके सामने खेलती कूदती थी ताकि उनको पता चले कि ह्यूमंस किस तरह बिहेव करते हैं। इसके बावजूद वो जो दोनों बच्चियां थी वो किसी भी तरह से ह्यूमंस की तरह बिहेव करने के लिए तैयार नहीं थी। फॉर वीक्स दे इग्नोर्ड द गेम्स एंड लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन। बहुत अरसे तक उन्होंने जो गेम्स थे और हंसी मजाक था जो वहां पे ऑर्फनेज के अंदर हुआ करता था, उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया था। इंस्टेड दे प्रेफर्ड टू क्राउच इन द शेड और स्टैंड मोशनलेस विद देयर फेसेस टू द वॉल। और वो सिर्फ किस बात के ऊपर जो है वो को प्रेफर करती थी, किस बात को जोर देती थी कि वो जो है शेड के अंदर खड़ी हो जाती क्राउचिंग पोजीशन में और बिल्कुल साकेत हो जाती और अपने जो चेहरे थे वो दीवार की तरफ कर लेती वुल्व्स की तरह। ओनली एट नाइट डिड दे बिकम एक्टिव। और सिर्फ रात को वो जो थी बिल्कुल एक्टिव हो जाती थी कि जैसे अब ये इनके जागने का टाइम है। दे वुड हाउल ईरिली और हर्ल देमसेल्व्स एट द वॉल इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप। और दीवार की तरफ खड़े होकर वो ये कोशिश करती थी कि किसी तरह से यहां से वो भाग जाएं। वी हैव अ क्वेश्चन पार्ट एफ, व्हाई डिड द गर्ल्स बिकम एक्टिव ओनली एट नाइट। तो ये बच्चियां जो थी सिर्फ रात को क्यों एक्टिव हो जाती थी। वी आर गोइंग टू राइट द आंसर एज द गर्ल्स बिकेम एक्टिव ओनली एट नाइट एज दे फॉलोड द बिहेवियर ऑफ वुल्व्स। ये वो किस लिए कर रही थी, क्योंकि वो वुल्व्स का बिहेवियर फॉलो कर रही थी। जिस तरह से वुल्व्स किया करते थे बिल्कुल इसी तरह से वो बिहेव कर रही थी। हु आर एक्टिव एट नाइट एंड स्लीपी ड्यूरिंग द डे। और वुल्व्स का तरीका यही है कि वो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। नेक्स्ट, दे वुड ओनली फीड लाइक वाइल्ड एनिमल्स। सिर्फ जानवरों की तरह खाती थी। टेकिंग रॉ मीट एंड लिक्विड्स विच दे वुड ईट एंड ड्रिंक इन अ क्राउचिंग पोजीशन। और खाती भी क्राउचिंग पोजीशन में थी जिस तरह से एनिमल्स बैठकर खाते हैं। और कच्चा गोश्त और लिक्विड्स मतलब अजीब व गरीब किस्म के उनके खाने होते थे, वो इंसानों वाले खाने पसंद नहीं करती थी। When Mrs. Singh gave Amala and Kamala toys to play with, they simply chewed them as if they were bones. जब उनको खिलौने देती थी मिसेस सिंह तो वो उनको चबा डालती थी जैसे कि वो हड्डियां हों। उन्होंने यही सीखा था। Whenever people went near them, they snarled and arched their backs, shaking their heads backwards and forwards. जब लोग उनके करीब जाने की कोशिश करते तो गुर्राती थी, अपने जो कमर है उसको बिल्कुल साकित कर लेती थी, अकड़ा देती थी और अपने सरों को हिलाती थी आगे पीछे इस तरह से कि नहीं नहीं हमारे करीब मत आना। वन लिटिल ऑफन बॉय ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद द वुल्फ गर्ल्स। एक बच्चे ने दोस्ती करने की कोशिश की। व्हेन दे डिसाइडेड टू प्ले विद हिम, और जब उन बच्चियों ने भी डिसाइड किया कि उस बच्चे के साथ खेले, यानी उसकी तरफ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसको जब एक्सेप्ट किया, दे ट्रीटेड हिम लाइक अ वुल्फ कब। तो उसको भेड़िए के बच्चे की तरह ही ट्रीट करने लगी।
तो फिर क्या हुआ, मिसेस सिंह हैड टू रश ओवर एंड रेस्क्यू हिम फ्रॉम देयर प्लेफुल अटैक। तो मिसेस सिंह भागती हुई आई और उस बच्चे को वहां से, उनके पास से बचाया। मिस्टर सिंह realized how difficult it was going to be to educate the girls। मिस्टर सिंह ने अब तक ये बात समझ ली थी कि इन बच्चियों को सिखाना समझाना बहुत मुश्किल काम है। Even after months in the orphanage, no progress had been made। कई महीने गुजर गए लेकिन वो टस से मस ना हुई, जरा सा भी उनके अंदर कोई फर्क नहीं आया। It was clear the girls did not think like humans। For them it was more natural to behave like wolves। तो यही बात सामने आ रही थी कि वो बच्चियां बिल्कुल ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो यही समझती थी खुद को कि दे वर वोल्व्स। Then both girls fell seriously ill and sadly Amala died of kidney disease on September 21st, 1921। ये बच्चियां आई थी नवंबर 4 को और इसके बाद 21 सितंबर 1921 में जो छोटी वाली बच्ची थी वो किडनी डिजीज की वजह से इंतकाल कर गई। फॉर कमाला द यंगर वुल्फ गर्ल्स डेथ वाज अ टेरिबल सेटबैक। जो बड़ी बच्ची थी उसके लिए उसका मर जाना एक इंतहाई तकलीफ दे मरहला था। शी हाउल्ड फॉर मेनी डेज एंड रिफ्यूज टू ईट। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और उसके दुख में कई दिन तक वो अजीब गरीब सी आवाजें निकालती रही वुल्फ्स की तरह। ऑल शी वुड डू वाज अ स्निफ राउंड फॉर अमाला सेंट। बस सिर्फ वो क्या करती थी, इधर उधर अमाला की खुशबू को सूंघती फिरती थी, उसको तलाश करती रहती थी। So we have a question here, part G. How do we know that Kamala missed her sister? हमें कैसे पता चलेगा कि कमाला अपनी सिस्टर को मिस कर रही थी? So this is the answer in this paragraph. We are going to write it as Kamala missed her sister greatly because she howled for many days and refused to eat. खाने पीने से भी मना कर दिया तो बहुत दिन तक वो जो है वो घुराती रही। All she would do was a sniff round फॉर अमाला सेंट। वो बस सिर्फ उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती थी कि उसको किसी तरह से अमाला की खुशबू कहीं से मिल जाए, तो वो सूंघती फिरती थी कि अमाला कहाँ मौजूद है। अब स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आता है। ग्रेजुअली कमाला टर्न टू मिसेस सिंह एंड स्लोली बिगैन टू रिस्पॉन्ड टू द वुमन्स पेशेंस एंड काइंडनेस। आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम के बाद बहुत स्लोली कमाला ने आखिरकार मिसेस सिंह को रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। At last she started to eat cooked meat। सबसे पहले उसने पका हुआ खाना खाना शुरू किया। And the day came when she made her first human sound। और आखिरकार उसने एक इंसानों वाली आवाज भी निकाली। मिसेस सिंह मसाज कमाला's thin legs every day। उसकी पतली पतली जो टांगें थी उसको रोजाना मसाज करती थी मिसेस कमाला। This was done so that कमाला could stand upright, ताकि वो सीधी खड़ी हो सके, एनिमल्स की तरह से क्राउचिंग पोजीशन में ना रहे। Early in 1922, after about a year, she could walk on her knees। बहुत टाइम के बाद, काफी महीनों के बाद, ऑलमोस्ट एक साल के बाद वो आखिरकार अपने घुटनों पर चलने लगी। एंड अ फ्यू मंथ्स आफ्टरवर्ड्स रोज अप ऑन हर 2 legs फॉर द फर्स्ट टाइम। और आखिरकार वो खड़ी हो गई और खड़े होकर इंसानों की तरह चलने लगी। इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट फॉर मिसेस सिंह हु हैड पेशेंटली स्पेंट आवर्स विद कमाला। ये मिसेस कमाला के लिए मिसेस सिंह के लिए एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। मिस्टर सिंह वॉज ऑल्सो डिलाइटेड। मिस्टर सिंह भी बहुत खुश थे। ही हेल्ड आउट हिज आर्म्स लाइक अ प्राउड फादर एज कमाला टुक हर फर्स्ट फ्यू फॉल्टरिंग स्टेप्स। और मिस्टर सिंह ने भी उसको गोद में उठाया जैसे ही उसने अपने लड़खड़ाते हुए कदम आगे बढ़ाए और वो चलने लगी। ओके, नाउ कमाला बिगैन टू ट्रस्ट ह्यूमंस। आखिरकार ये बच्ची जो थी वो ह्यूमंस पर बिलीव करने लगी, उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगी। उसको एतबार आ गया कि ये लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शी वुड बाउंड टूवर्ड्स मिसेस सिंह व्हेन इट वाज टाइम फॉर हर टू हैव हर मिल्क। और वो उनके पास, मिसेस सिंह के पास चलते हुए जाती थी जब उसके खाने पीने का टाइम होता था। और एंजॉय राइड्स ऑन द स्विंग, और झूले भी झूलने लगी थी। शी बिकेम यूज टू वेयरिंग अ ड्रेस, कपड़े पहनने लगी थी। एंड शी ट्राई टू लर्न टू स्पीक, बोलने भी उसने सीखना शुरू कर दिया था। कमाला अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वाज सेड टू हर बट शी स्पोक वेरी लिटिल हरसेल्फ। बातें वो दूसरों की समझ जाती थी जब उसके सामने कुछ कहा जाता था, लेकिन खुद बहुत कम बोलती थी। इवन सो शी मैनेज्ड बाय 1929 टू लर्न अबाउट 50 वर्ड्स। 1929 में जाकर, 1921 में ये लोग आए थे, आफ्टर अबाउट 8 years इस बच्ची ने सिर्फ 50 वर्ड्स सीखे, यानी खुद से बोलने के लिए इसने तकरीबन 50 वर्ड्स सीख लिए थे। इन द ऑर्फनेज गार्डन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द फ्लावर्स एंड एनिमल्स व्हेन शी थॉट नोबडी कुड हेयर। तो फिर उसने क्या किया कि फूलों से और जानवरों से बातें करने लगी जिस वक्त कोई भी नहीं होता था। शी वुड सिंग लॉट्स ऑफ लिटिल फ्रेजेस।
छोटी छोटी जो है वो फ्रेजेस को गुनगुनाती रहती थी. फॉर आवर्स शी वुड सिंग अवे टू हर ऑडियंस ऑफ चिकन्स, गोट्स, पपीज एंड ट्रीज. तो उसके ऑडियंस कौन थे, उसके सुनने वाले कौन थे? ये सारे लोग थे, यानी एनिमल्स और ट्रीज. Then Mrs. Singh was forced to leave the orphanage for several weeks. फिर कुछ ऐसा हुआ कि मिसेस सिंह को काफी टाइम के लिए ऑर्फनेज छोड़कर जाना पड़ा. वजह उसकी क्या थी? Her aunt was seriously ill. उनकी आंटी बहुत बुरी तरह बीमार हो गई थी. Kamala couldn't understand why Mrs. Singh had left her. कि कमाला नहीं समझ पा रही थी मिसेस सिंह उसको छोड़कर क्यों चली गई हैं. For 2 weeks she went back to her old days. कुछ दिनों के लिए यानी 2 हफ्तों तक के लिए वो वापस अपने उसी पोजीशन में चली गई जिस तरह से वो पहले बिहेव करती थी. Here we have a question part H. How long did it take Kamala to learn about 50 words? The answer is it took Kamala almost 9 years to learn about 50 words. 9 साल लग गए थे. Part I says why did Mrs. Singh had to leave the orphanage? Mrs. Singh को orphanage क्यों छोड़कर जाना पड़ा? Mrs. Singh had to leave the orphanage because her aunt was ill. उनकी आंटी बीमार हो गई थी. तो जब वो बीमार होके कहीं चली गई तो फिर क्या हुआ? She sat in a dark corner, swaying backwards and forwards. वो एक कॉर्नर पर बैठ जाती थी और आगे पीछे बुरी तरह से टहलती थी जैसे बहुत बेचैन हो. Everyone in the orphanage was worried about her because there was nothing they could do. तो हर एक बड़ा परेशान था लेकिन कुछ कोई कर नहीं सकता था. कमाला refused her food. कमाला ने खाना खाना छोड़ दिया. She stopped singing to herself. खुद से गुनगुनाना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया. At last Mrs. Singh returned. आखिरकार मिसेस सिंह वापस आ गई. Quick Kamala, Mama has come back. Someone cried. और आते ही उन्होंने क्या कहा? Quick Kamala, जल्दी से आ जाओ कमाला, मामा वापस आ गई हैं. The words acted like magic. Kamala ran to greet Mrs. Singh. और ये वर्ड्स मैजिक की तरह, जादू की तरह काम कर गए. वो भागती हुई मिसेस सिंह को वेलकम करने के लिए आ गई. बोथ वर ओवरजॉयड टू सी ईच अदर. मिसेस सिंह हेल्ड आउट हर आर्म्स, लिफ्टेड कमाला अप एंड कवर्ड हर फेस विद किसेस. और दोनों बड़े खुश हुए. जैसे हम बिछड़े हुए से मिलते हैं तो किस तरह से एक दूसरे को वार्मली वेलकम करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले बहुत देर तक एक दूसरे के करीब रहे, गले मिलते रहे और दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे. कमाला रिफ्यूज टू लेट गो ऑफ मिसेस सिंह हैंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और पूरा दिन कमाला ने मिसेस सिंह का हाथ नहीं छोड़ा. दैट नाइट मिस्टर सिंह सैट इन हिज स्टडी राइटिंग अप हिज नोट्स. उस रात मिस्टर सिंह अपने स्टडी में अपने नोट्स लिखते रहे. एज ही फिनिश्ड राइटिंग ही स्माइल्ड टू हिमसेल्फ. खुद से मुस्कुराने लगे जब उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया. कमाला हैड लर्न समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ टू वॉक एंड टॉक. बोलने और चलने से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट उसने एक चीज सीखी थी, विच वॉज शी हैड लर्नड हाउ टू लव अ ह्यूमन बीइंग. कि एक इंसान से किस तरह प्यार किया जाता है. जिस चीज को वो पहले नहीं जानती थी उसने ये बात सीख ली थी कि ह्यूमंस एक दूसरे को कैसे प्यार करते हैं और कैसे उनके साथ रहते हैं. ऑन November 14, 1929 कमाला डाइड. 1929 में ही वो बच्ची तकरीबन 8 से 9 साल के बाद मर गई. कमाला एज कमाला हैड डन. और उसके साथ भी वही हुआ था जो अमाला के साथ हुआ, ऑफ किडनी फेलियर. यानी दोनों किडनी प्रॉब्लम की वजह से ही दुनिया से चली गई. शी वॉज ग्रेटली मोर्न बाय मिसेस सिंह एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज. और उसकी मौत पर बहुत ज्यादा अफसोस और सोग मनाया गया. Now we have the last question part J, which says what was the most important thing that Kamala learned? तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कमाला ने क्या सीखी थी? तो इसका आंसर ये है, the most important thing that Kamala learned was how to love a human being. कैसे एक इंसान से प्यार किया जाता है. So here we end up with the explanation and question and answers of this chapter, The Wolf Children Part 2. I hope students it would be clear to you and you would have liked the video. Please share it with your friends, like it. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.